So hello and welcome to yet another episode of Players Den. And today we have with us Syed Imad Ali, who's the Junior World Scrabble Champion, and he accomplished this feat last year at the age of 13. तो इमाद आप कैसे हैं आज? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या चल रहा I'm good well. Thank you, Imad, for giving us the time today, है? and for gracing our program with your presence. थैंक यू। So we get right to it first. Or The first thing that I would like to ask you, Imad, is if I'm playing Scrabble, to how much score will I get for spelling out Imad? इमाद हाँ मतलब स्पेशल टाइप अबाउट होती है वो ट्रिपल वर्ड वाली उसके बगैर अगर प्लेन वैल्यू पे हो तो इमाद का कितना स्कोर होगा? 8 पॉइंट्स आई थिंक। हाँ 8 पॉइंट्स होंगे कुछ। Oh yeah, 3 फॉर एम एंड 2 फॉर डी। that's pretty cool. Acha, so how did you discover Scrabble? स्क्रैबल जब मैं 6 साल का था एंड आई वाज इन क्लास 2 आई थिंक, तो माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू स्क्रैबल एंड सिंस देन आई वाज जस्ट हुक, ऑलवेज यू नो asking my parents and cousins to play with me. Like it was in 2015 when one of my school teachers introduced me to a tournament organized by the Pakistan Scrabble Association, and I placed third in the tournament, so it motivated me more. And then I met Sir Tariq, who is the head of PSA, and he told us about the monthly tournaments organized by PSA. So I participated in them, and from there I went forward and forward. Oh, nice. Acha, so Scrabble is a fun game. I mean, we've all played it in our childhood. Obviously, comparatively नहीं खेली आपकी तरह, लेकिन so okay, let me tell you a story. और ये probably हम में से बहुत के साथ हुआ हुआ ये बात. ये Scrabble खेलते खेलते because we need to one up the opponent, तो लड़ाई हमारी अक्सर हो जाती है. So when वो you तो say you talked with played with your parents and cousins, so do you have any memorable memories जिसमें probably आपने कोई बहुत अच्छा सा वर्ड चूज करके बनाया बनाया हो या बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वर्ड हो या फिर आई डोंट नो probably you fought anything? बस होता ये था कि मेरे फादर हर वक्त जीतते थे। मेरी कोशिश ये होती थी करीब से करीब आ जाऊँ, बस ये उम्मीद थी। बट तो कभी आपने उनको हराया फिर? हराया वो फर्स्ट 2015 में जब मैं टूर्नामेंट खेला था उसके बाद ही हराया था, उससे पहले नहीं। एंड व्हाट वर योर फीलिंग्स देन? अब्बा भी हैरान हुए कैसे हरा दिया, लेकिन उनको ही पता है टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट होता है, उसमें भी तो खेला है। तो या वो भी खुश थे काफ़ी वैसे। हाँ सो स्टूडेंट बिकेम द टीचर तो व्हाई नॉट. अच्छा, um, we've already covered कि how you got into the competitive aspect of Scrabble क्योंकि I mean there are not lots of us who actually know कि Scrabble competitively भी खेली जाती है. हम्म। तो you started playing in school, लेकिन Yep. what was the first tournament that you ever played? मतलब चाहे वो पाकिस्तान मतलब national था या international tournament था. What was the first one that you ever played? फर्स्ट वन होता है कि हर साल एक पीएसए ऑर्गेनाइज करते हैं इंटर स्कूल, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं। और हमारा रिकॉर्ड भी यही है कि सबसे लार्ज स्क्रैबल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किए गए। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उससे फिर हम वीकली पे गए जिसको जो ही पीएसए ऑर्गेनाइज करती है। That's something that ये मैं पहली बार सुन रही हूँ और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि the younger lot is allowed to do stuff. हम्म। अच्छा, so okay, so Scrabble is a competition जिसमें championship वगैरह भी होती है and as such मतलब because of the competitive nature you can call it a sport. लेकिन it's not like the others जहाँ पे कोई physical हम्म। किसी की activity हो रही हो. So when you talk to people, मतलब जानने वाले हैं, friends हैं, probably you meet people, तो and you like tell them you play Scrabble um, on an international level. So what is it that they have to say? हम पार्टिसिपेट करते हैं तो, और जब पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो बहुत ऑनर की फीलिंग होती है। That's true. अच्छा, again since it's not a physical sport, लेकिन I'm sure कि उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, train करना पड़ता है. तो इसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग आप करते हैं मतलब मतलब आपको पता हो कि कोई टूर्नामेंट आने वाला है, so how do you prepare yourself?
प्रिपेयर तो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे हम वर्ड्स सीखते हैं, और ओके। जो हमारे पुराने प्लेयर्स होते हैं उनका ये है, और गिव बैक टू द कम्युनिटी टाइप ऑफ है सेटअप हमारा, कि जब प्लेयर्स सीखते हैं तो अपने छोटों को भी सिखाते हैं। ज़्यादातर हमारा यूथ का ही है फोकस्ड। सो अच्छा, इज देयर लाइक अ मेंटरशिप काइंड ऑफ लाइक थिंग कि हफ्ते में लेट्स से 2 दफा आप जाके प्रॉब्लम उनके साथ खेल के कुछ गाइड करते हैं? हाउ डज दिस वर्क? प्लेयर्स कुछ हैं जैसे मुइज़ बेग, हमारे फर्स्ट यूथ चैम्पियन जो थे, और मिस्टर असीम खत्री, वो काफ़ी ट्रेनिंग कराते हैं, और उनको काफ़ी क्रेडिट जाते हैं कि हमारे प्लेयर्स को ट्रेन करा है। उन्होंने मुझे भी ट्रेन करा है वैसे। ओके। सो आपने मोइज का नाम लिया, सो एंड ही हेल्प यू विद द ट्रेनिंग एज वेल। या मुइज़ एंड तो वसीम। हाँ, so so I mean they were there before you and everything. So how does it feel when you actually मतलब अब आप तकरीबन although you still junior लेकिन आप उनकी तकरीबन लीग में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे उनको भी बहुत खुशी होती है कि हमने ट्रेन करा है, तो उनको भी मतलब खुशी होगी कि उनका स्टूडेंट ना आगे जा रहा है, और उनको मैं काफ़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मिस्टर तारिक जो हैं हमारी मोरल सपोर्ट थी, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। हैं? ठीक है। अच्छा, अच्छा, रिगार्डिंग ट्रेनिंग यू मेंशन के सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, तो यू लर्न न्यू वर्ड्स। सो डू यू या थिंक कि आप क्या कहते हैं, आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपको हेल्प करता है, इट हैज हेल्प बिल्ड योर वोकैबुलरी वगैरह? इंग्लिश में तो काफ़ी हेल्प करता है, और मेंटल मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप पॉइंट्स खुद ही कुछ सेकंड्स में आपको कैलकुलेट करने होते हैं ना, इसलिए काफ़ी हेल्प हुई है मुझे। ओके ओके, ठीक है। हाँ, दैट्स एन एस्पेक्ट जो मैंने कभी नहीं सोचा। आई मीन वोकैबुलरी, आई अंडरस्टूड कि यू नीड टू मतलब आपको वर्ड्स बहुत सारे आप बना रहे होते हैं। मैथ्स वाला एस्पेक्ट, दिस इज न्यू फॉर मी, सो आई हैव लर्नड समथिंग न्यू फ्रॉम यू एज वेल। अच्छा, सो अच्छा, व्हाट डू यू डू अदरवाइज? मतलब आप स्क्रैबल तो खेलते हैं लेकिन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, आई एम करेंटली इन ग्रेड 10। लॉकडाउन के बाद आऊँगा ग्रेड 10 में। और अभी तो पढ़ाई मेरी उससे इस पे क्या कहते हैं, एग्ज़ाम से पहले जो होती है ओ लेवल में हूँ मैं, और अगले ठीक साल एग्ज़ाम दूंगा। और फेवरेट सब्जेक्ट वैसे इकोनॉमिक्स ही है मेरा, वो चूज़ किया है। है। नाइस। सो इस साल तो एग्जाम आपके नहीं हुए, कैंसिल हो गए हैं? इस अगले हाँ, साल होंगे। ओके, नाइस। सो खेल के साथ पढ़ाई भी पूरी पूरी। हाँ, सो पढ़ाई हो ही जाती है वैसे। हाँ, सो व्हेन यू गो टू टूर्नामेंट्स, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, तो देन हाउ डू यू मैनेज? बिकॉज आई मीन स्कूल की तो अपनी एक वो रूटीन होती, दे वोंट स्टॉप फॉर यू। हमारे स्कूल की ये अच्छी बात है, ये काफ़ी इंकरेज करती है हमारे प्लेयर्स को। जैसे टूर्नामेंट्स हो तो हमको डे ऑफ दे दिया, और इंटरनेशनल पूरी लीव देते हैं हमें, जो बड़ी अच्छी बात है कि हम मोटिवेट होते हैं कि पढ़ाई मिस नहीं होगी लेकिन आप खेल सकते हो। सो द स्कूल आल्सो हेल्प्स यू विद स्टफ, मतलब या they give you time off वगैरह, and your या teachers, the understanding of the fact के um, you know या दे कि हेल्प अ लॉट, दे हेल्प अ लॉट। okay, that's also good to hear. um, अच्छा, what's a word that you learned अपने स्क्रैबल के उसमें जो आपको हमेशा याद रहने वाला? कौन सा वर्ड? हाँ, जो कोई कोई सा भी वर्ड जो पहले आपको नहीं आता था लेकिन now you एक वर्ड है, नेफ्राइट है, NEPHRITE। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने फाइनल में खेला था एक, know. और 2018 में, और उस चैम्पियनशिप को जीता था मैं। In Pakistan? हाँ, इंटरनेशनल थी। Oh, अच्छा, that's great. So do you know what nephrite means? नेफ्राइट, बायो का ही वर्ड होगा कोई, मीनिंग्स तो याद नहीं करते हैं वैसे। हाँ, so okay, ये भी ठीक है, स्पेलिंग याद करना होता है। हाँ, या that's a good. अच्छा, so like every competition has its own strategy के हम bowling ऐसे कराएंगे, हम serve ऐसे कराएंगे। So या स्क्रैबल में इस तरह की कौन सी strategies होती हैं? स्क्रैबल में बहुत तो चांस। हाँ, काफ़ी वैरायटी होती है कि आप वर्ड खेलें, आप ये देखेंगे दूसरा ओपोनेंट को ज़्यादा स्कोर नहीं मिले। और अपनी रैक मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है, कि आप अगर बुरे टाइल्स छोड़ेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो
उसका भी ख्याल रखना होता है, और यही हम सीखते हैं PSA पे। Okay. Can you elaborate on that? This is juicy stuff. ये सबको पता होना चाहिए ताकि हम भी अपने घर वालों के साथ स्क्रैबल खेले तो जीत सके। ये होता है कि आपके डबल लेटर स्कोर टाइप के स्कोर होते हैं ना, बोनस जी, पॉइंट्स के लिए। डबल ट्रिपल होते हैं। उन पे हम वॉवल्स वगैरह ही रखते हैं कि वर्ड्स बनते हैं साइड बाय साइड। और रैक मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप सारे कॉन्सोनेंट ना छोड़ें या सारे वॉवल नहीं छोड़ें, ताकि आपका अगले रैक में आप स्कोर कर पाएँ। Yeah. हाँ, वो फिर एंड में डबल ओज और डबल एज जब रहते तो बहुत गुस्सा आता है। You're not able to do anything. अच्छा, एंड में आपके पास अक्सर एक्स और दो ए और पता नहीं ए की हो, ये तब क्या। ये होता अच्छा, है। सो व्हेन यू नॉट प्लेइंग, मतलब अभी कंपटीशन वगैरह नहीं हो रहा, तो तब मतलब साइलेंस या पीसफुल टाइम है तो आप क्या करते हैं, आपकी क्या क्या एक्टिविटीज अदर देन पढ़ाई? डू यू लाइक अदर और स्पोर्ट्स, डू लाइक रीडिंग, वाचिंग मूवीज, व्हाट डू यू? हॉबीज़ तो काफ़ी रीडिंग है, और लॉकडाउन से पहले क्रिकेट था, और स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, यही होता था। क्रिकेट आपको पसंद है? हम्म आई लाइक रीडिंग, और लॉकडाउन से पहले क्रिकेट खेलता था, और स्कूल में फुटबॉल। और ऑन अभी तक तो छुट्टियों में हमारे पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन वो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। यू वर इन इंग्लैंड लास्ट ईयर, आपने अपना लास्ट जो पिछला टाइटल था वो जीता था। सो लाइक यू हम्म, टोल्ड मी कि यूजुअली मेंटली कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि मेरा अब इतना स्कोर हो गया और इतना स्कोर हो गया, एंड यू हम्म। न्यू फाइनल कुछ मोमेंट्स वर अहेड ऑफ योर कंपेटिटर, तो व्हाट वर योर फीलिंग्स एट द टाइम? फीलिंग्स, एक्चुअली मैं 16th मैच था आई थिंक, 18 मैच सॉरी, उसमें मुझे जीतना था वो, ताकि मैं टाइटल जीत जाऊँ। तो उसमें ही टेंशन थी थोड़ी बहुत कि आ, अगर हार गए तो क्या होगा, सस्पेंस आ जाएगा। और काफ़ी क्लोज गेम था, तो जब मुझे पता चल गया कि जीत ही जाऊंगा, तो बहुत खुशी हुई, आराम हुआ। ओके। अच्छा, सो एक क्वेश्चन मुझे पहले पूछना चाहिए था। 18 मैचेस, यू प्लेड 18 मैचेस इन वन टूर्नामेंट, तो यूजुअली एक मैच कितने देर का होता है? मतलब कंसिडरिंग कि स्क्रैबल है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू फिनिश अ मैच? और एक दिन में कितने मैचेस हो रहे होते हैं, उसका क्या टूर्नामेंट का क्या सिनेरियो पूरा होगा? एक मैच अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स का होता है, हम्म। 25 मिनट्स टू ईच साइड, और 20 गेम्स इस दफ़ा। तो ओके। उसमें तीन तीन दिन पर मुझसे मिलता, और पहले दिन आई थिंक 6 थे, फिर 9 गेम्स, देन 5 आई थिंक, या ओके, तो और ये मतलब एक गो में हो रही होती है बैक टू बैक? बैक टू बैक, बीच में थोड़ी सी ब्रेक होती है लंच वगैरह के लिए बस। ओके। और क्या कहते हैं, इज इट लाइक वहाँ पे क्या ऑडियंस वगैरह मौजूद होती है, मतलब टू cheer you on? ऑडियंस नहीं, उस तरह का गेम नहीं है। अच्छा, मतलब वही होते हैं जो जिनको आना होता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, घूमते रहते हैं। और कैमरा वगैरह नहीं होती, मीडिया? कैम मीडिया नहीं, मीडिया नहीं होता। रिकॉर्डिंग तो हो रही होती है, बिकॉज आई थिंक मैंने यूट्यूब पे कुछ देखे हुए हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही थी, और कुछ गेम्स भी रिकॉर्ड हो रहे होते हैं ओके। ऑनलाइन। सो अच्छा, अगेन रिलेटेड, ड्यूरिंग दोस ट्रिप्स, मतलब जब आप इंग्लैंड गए खेलने, या आई थिंक यू वेंट टू मलेशिया, हांगकांग, यू मलेशिया, वेंट सम, मलेशिया। हाँ। सो other than Scrabble वगैरह, do you have any memorable memories of things that मैं happened over? मेमोरीज तो दोस्तों के साथ ही होती हैं, क्या किया क्या नहीं किया। वो टर्की था शहर का नाम, वो घूमे। और मेमोरीज क्या, प्रैंक्स, वी प्लेड प्रैंक्स ऑन ईच अदर, वही होता था रात में Okay. निकल कर खाना खाने, इस तरह की चीज़ें। What have you learned, मतलब not vocabulary लेकिन lessons of life जो आपने सीखे during your Scrabble period, वो अहम वाले कौन से थे? मेन लेसन ऑफ लाइफ ये है कि आप जिस चीज़ में मेहनत करेंगे आप उसमें कामयाब होंगे। अब कोई भी चीज़ हो उसमें आप मेहनत करनी पड़ेगी। आप टैलेंट पे तो आप चले जाएंगे, थोड़ा बहुत चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हार्ड वर्क पे ही होता है। और एक और चीज़ थी कि
बिहेवियर सबसे ज़्यादा आपका मैटर करता है, कोई ये याद नहीं रखेगा आपने जीता क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका बिहेवियर हर वक्त याद रहेगा। So as a sports person, in general, not just Scrabble, आपको क्या हम्म। लगता है कि हमारे सोसाइटी में पाकिस्तान में क्या कमी है, या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से we can promote sports and games further, और हम और स्पोर्ट्स में बना। स्पोर्ट्स, देखिए पाकिस्तान में तो मेन 3-4 ही स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, स्क्वॉश है, टेनिस है, इस तरह की फिजिकल स्पोर्ट्स हैं। मेंटल स्पोर्ट्स पे तो इतना कोई तवज्जो नहीं है। तो लोगों की मिसकंसेप्शन यही होती है कि स्क्रैबल या चेस वो पढ़े लिखे लोगों का गेम है। अब ऐसा भी नहीं है, सभी खेलें तो शौक तो होगा आपको, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। सो तो एक क्वेश्चन मैंने पीछे मिस कर दिया। Throughout your career, मतलब like you mentioned कि your father was the one who taught you how to play Scrabble, and हम्म। so otherwise, who has been your greatest support throughout your career? और किस किस तरीके से do you feel कि they've contributed to your career? पेरेंट्स के अलावा तो हमारे स्क्रैबल के दोस्त हैं, उनको काफ़ी एड जाते हैं, उनके मज़े करे इतने ज़्यादा, और उनसे भी काफ़ी सीखा कि सारे अच्छी प्लेयर्स हैं उससे। और तारिक परवेज़ हैं हमारे, काफ़ी अच्छे मेंटर हैं, हर वक्त इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि आपने, अगर आपका एटीट्यूड सही होगा तो आपका कोई गेम्स का मसला नहीं होगा कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, कोई वो नहीं देखेगा। Hmm. और अगर आप स्ट्रेटजी वाइज और स्टडी के हिसाब से जिन्हें मुझे सिखाया, वो वसीम खत्री और मुइज़ बेग, उनको काफ़ी क्रेडिट जाता है कि मुझे इतना अच्छा प्लेयर बनाया। अच्छा, I have a question. I was wondering कि you won 2 titles, उसके अलावा भी आपने काफी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल इंटरनेशनल में, and you won other stuff as well. तो या पाकिस्तान में लाइक यू आल्सो मेंशन कि स्क्रैबल या चेस जो है इट्स नॉट रियली कंसिडर्ड स्पोर्ट। तो या मतलब लाइक मुझे पता चला और लोगों को पता चला होगा, बट डू इन जनरल डू पीपल एक्चुअली नो, जिनसे आप मिलते हैं, कि स्क्रैबल कम्पेटिटिवली खेली जाती है, या फिर हैज देयर एवर बीन लाइक मीडिया मीडिया का, हैव यू एवर हैड मीडिया का एक्सपोजर, टीवी हो या जैसे भी हो? हाँ, काफ़ी ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर हुआ है। जैसे हम इंटरनेशनल जाते हैं तो हर वक्त मीडिया पे हमारे वो अचीवमेंट्स आती हैं, और इंटरव्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। तो अवेयरनेस है कि ट्रैवल होता है, इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता कि होता क्या है लोगों को ज़्यादा। वर्ड्स का गेम है, बस इतना पता है, उनको रूल्स वगैरह इतने का नहीं पता होता। Oh, I wish people knew that. It's such a fun game. अच्छा, या सो अच्छा, आपके ख्याल में ये जो स्टेटस आप मुझे बता रहे हैं, अच्छा, यू टॉक्ड अबाउट मीडिया एक्सपोजर पहले तो, लेकिन बाहर के मुल्कों में, व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होता है मीडिया एक्सपोजर, अगर देखा जाए तो हमारे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अचीवमेंट्स भी हमारे ज़्यादातर यूथ की होती हैं, तो उनसे और फ़ख्र होता है लोगों को। ठीक है। और अच्छा, सो यू मेंशन किस तरह लोगों को आइडिया नहीं है कि स्क्रैबल इस तरह से होती है। सो सिंस you're part of this fraternity, अगर आपको प्रमोट करना हो स्क्रैबल को, कि लोग और खेलें, लोगों को पता हो कैसे खेलते हैं, रूल्स का पता हो, तो व्हाट वुड यू डू? ज़्यादातर यूथ को तो पता ही है, लेकिन एल्डर जो हैं हमारे, उनको इतना नहीं पता। तो प्रमोशन तो काफ़ी करते हैं हम। जैसे मैं बताया था कि हर साल वो होती है इंटर स्कूल, तो उसमें काफ़ी मीडिया टेंशन आती है, और पिछली दफ़ा हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ कोलैबोरेट किया था, उनके Good. ओनर के साथ, उससे काफ़ी पब्लिसिटी हुई है हमारी वैसे। And you got new players? न्यू प्लेयर्स, यस, बहुत सारे आए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इतना पता नहीं चला, ज़्यादातर Absolutely. ऑनलाइन ही है। अच्छा, how has the lockdown affected your playing? मतलब टूर्नामेंट आपने एक तो बताया कि ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन रेगुलर जो आपकी प्रैक्टिसेस हो रहे होते हैं, या यू मीट विद योर मेंटोर्स, तो उस पे क्या फर्क पड़ा? उसमें स्क्रैबल तो वही गेम है, फिजिकल तो है, मतलब टायर्स तो आप एक बैग में होते हैं, वो हाँ, भी निकालने ही होते हैं। तो अब बोर्ड टू बोर्ड गेम्स तो ज़्यादातर अब आई थिंक 2021 में ही होंगे, और तो इसलिए हमने ऑनलाइन की तरफ टर्न किया है, क्योंकि यही फ्यूचर है वैसे अभी के लिए। ओके। लेकिन ये क्या आपकी, मतलब अदर देन द फिजिकल एस्पेक्ट, के टाइल्स वगैरह होती हैं, ज्यादा यू फील ज्यादा फर्क नहीं
आ, हाँ, मीटिंग्स मतलब हम गेट टुगेदर भी नहीं कर सकते, तो ट्रेनिंग सब कुछ ही ऑनलाइन है और बट इतना इट्स फ़र्क नहीं पड़ रहा है वैसे। या ओके, बट इट्स अच्छा। अच्छा, अब somebody, if somebody, a child or maybe even an adult, they want to play Scrabble, मतलब चाहे फन के लिए, चाहे बल्कि ज़्यादा प्रोफेशनली, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? एडवाइस तो ये है कि पहले आप गेम एंजॉय करें, यही आपकी मेन होनी चाहिए मोटिवेशन। अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपको और खेलने का मतलब इम्प्रूव करने का शौक़ होगा वैसे। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिवली खेलना है तो आप फेसबुक पे पेज है पीएसए का, आप उस पे जाएं, और हर महीने होते हैं टूर्नामेंट्स। वैसे लॉकडाउन में ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन वैसे होते हैं टूर्नामेंट्स, आप उस पर पार्टिसिपेट कर लें। Anybody can participate. या As I was just thinking because again, we've all played Scrabble at some. मतलब I've played at least Scrabble at some point, और I've realized this about myself कि जो जल्दी जल्दी में और जो aggressive एक play होता है ना, उसमें हमेशा काम खराब हो जाता है. So when you're playing Scrabble, so what do you think are qualities that help you actually stay focused और आराम से तसल्ली के साथ? क्वालिटीज़ मेन तो ये है कि आप टेंशन ना लें जब बुरे टाइल जाएंगे, क्योंकि वो तो आने हैं। कोई ऐसे एक दो ही गेम होंगे इसमें पूरे अच्छे टाइल आए। तो मेन आपकी ट्रेनिंग इसी के काम आती है कि आप टेंशन नहीं लें, आप मूव सबसे अच्छी खेलें, अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी खेलें। और While क्या limiting your competitor क्यों लिमिटिंग ना? हाँ, कभी कभार ये भी होता है कि वो खेलते ही रह जाते हैं, 40 हाँ, 50 पॉइंट्स ले ही जा रहे हैं, उसमें बड़ा गुस्सा आता है। 40 लेकिन 50 आप पॉइंट बहुत ही ज्यादा हार्ट अटैक मोमेंट हो जाता है. अच्छा, यूजुअली वी हैव अ फन पार्ट, वी हैव अ रैपिड फायर. हमारे बहुत बाकी जो हमारे गेस्ट हैं उनका पीरियड है रैपिड फायर, बट सिंस यू प्ले स्क्रैबल आई लव द गेम, सो आई हैव समथिंग ऑफ अ ट्विस्ट ऑफ इट फॉर यू. ठीक है, so here goes. Can you spell these words? Waffle. WAFFLE। How much? इसके कितने points होंगे? 15। Oh, that's nice. Maybe I know waffle spell क्या. अच्छा. Vapor. पेपर। Vapor. As in water vapor. अच्छा, VAPOR। 10 Okay. पॉइंट्स। या Abject. एब्जेक्ट। ABJECT। Oh, perfect. You won. You've got 3 out of 3 points. अच्छा. So moving on to the next question. आपको 7 tiles मिलती हैं गेम में. So यस। वो कौन से वाले ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको देख के आपको बड़ी खुशी होती है कि वो I'm so lucky today. एक तो है एस होते हैं, एक्स, जे, एस का जेड। एस का 1 पॉइंट, एक्स के 10 होते हैं मेरे ख्याल में. एक्स के 10 होते हैं, और नहीं, एक्स के 8 होते हैं और जे के भी 8 होते हैं, और जेड के 10। एक एल का भी होता है कोई. हम्म। क्यू होता है. वो क्यू होता है. क्यू होता है। क्यू इन होता है. क्यू का ये होता है, आपके पास यू नहीं है तो वो फंस जाता है। हाँ, फिर उसमें लेकिन बड़ा अनलेस कि यू गुस्सा। हैव आई देन यू कैन प्ले ची, एज इन क्यू आई या ची जो होता या है. हाँ. वो भी खेल सकते और वो अगर ट्रिपल वाले पे आ जाए तो फिर तो ज्यादा खुशी होती हैं बहुत ज़्यादा। है. या ओके. अच्छा, अगर आपको याद हो, आप सबसे थ्रू आउट योर करियर स्क्रैबल का रन, व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोरिंग वर्ड दैट यू फाउंड, और अगर आपको याद हो वो वर्ड क्या था? कोडिंग वर्ड हाईएस्ट. हाईएस्ट. एन एनरिच्ड खेला था, ENRICHED। 185 का था। ट्रिपल वर्ड पे आया या ट्रिपल और इसी दूसरे वाला. डबल डबल ट्रिपल। ओह गॉड, दैट इज सो. वो कितना मजा आया होगा. बहुत ज़्यादा। अच्छा. अदर देन पढ़ाई वगैरह, क्रिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कोई कॉजेज हैं जिनके लिए यू फील के इमाद feels really really deeply about this, like let's say बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एनिमल राइट्स होते हैं, so what's a cause that's close to your heart? पॉल्यूशन का ही है पाकिस्तान में, हर जगह कचरा पड़ा होता है। काफ़ी गम होता है कि हमारे लोग ऐसे भी हैं। लिटरेट वाले भी जब करेंगे तो बाकी क्या करेंगे, हमारे लिटरेट अवाम ही ऐसी हरकतें करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में चेंज करूँ, और हमारे आवाम भी ये समझे कि पॉल्यूशन नहीं करे।
आपका ही फायदा ही होगा। I haven't been to Karachi in so many years. हम्म, And because we live in Islamabad and especially बीच में लॉकडाउन था तो गाड़ियाँ बहुत कम चल रही थी. I do remember this. April में. We have spring over here in April. March के end में हम्म, April में. I remember going out मुझे बकायदा तौर पे घास की खुशबू आ रही थी और स्प्रिंग फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी. मैंने बहुत अरसे के बाद I felt that way. तो इस्लामाबाद में तो आती है ये। हाँ, अब ऑब्वियसली कम हो गई भी है बिकॉज आई मीन गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई, पोल्यूशन ज्यादा हो गई. लेकिन पिछले हफ्ते में क्योंकि गाड़ियां लॉकडाउन था, पीपल weren't going out, इट वाज जब एक्चुअली नाइस. तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. तो या आई एम श्योर कि बहुत पहले और शहरों में भी ऐसे होता होगा कि खुशबू आ रही है फूलों की, पता चल रहा है. हम्म लेकिन आई थिंक दैट वी दीज आर लाइक वेरी कॉमन थिंग्स दैट वी डोंट या यू नो हम सेंस नहीं कर पाते हैं. दैट्स वेरी सैड अब इंडीड. स्क्रैबल से रिलेटेड हो तो हाँ, या दैट्स लाइफ में कह लें कि आपको जो चीज़ का शौक है आप वही करें, और उसमें आप मेहनत अगर करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप थोड़ा बहुत टैलेंट पे चले आएंगे, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आप कामयाब तो होंगे। ओके. ग्रेट. Thank you, Ahmad. It was nice to थैंक see यू। you. And hopefully, some other time as well, we'll ask you to join us some other program. Thank you, Hafiz.